Hello, banking aspirants. My name is Priya and I welcome you all to this channel. In this video, I am going to tell you that what is Central Bank of India apprentice job, why you should fill the form or why there is no need to fill this form. It's my request to please watch this video till the end because in end of this video, you will definitely going to receive all the solutions of your doubt regarding filling this form. So let's start without wasting any time. So let's get quick summary about the notification. So there is total 4,500 training seats. The start date of filling this form is 7th June 2025. Means from today you can fill the form till 23rd June 2025 you can fill the form. If we talk about the examination date, so the tentative examination date is first week of July. The minimum age criteria is 20 years and the maximum age criteria is 28 years. You should have the graduation certificate. Okay, if we talk about the fee, there is 1800 plus GST for general and OBC category, and the rest तो we all know that उससे कम ही रहता है. ठीक है. Okay, so if we talk about the examination patterns, so all the question will be objective type, plus there is a good thing that there is no negative marking. Okay, if we talk about the if we talk about the syllabus of this exam, so the syllabus will be same as the banking normal banking exams like quantitative aptitude, reasoning means logical reasoning, computer, and also English. Okay, but the difference is in the GA portion. Okay, in GA portion they are going to ask you the banking product, the insurance product, the investment product. Okay, why they are going to ask you, I will discuss later. Okay, if we talk about the total marks, there is 100 and question is also 100. Means 1 marks 1 question. The total time is 16. Total time is 60 minutes. And of course one of the most important thing that there is LPT test because वो आपका language test लेंगे. लैंग्वेज अगर मैं बोलूँ तो देखो उसमें अभी नोटिफिकेशन जो मैंने देखा उसमें हिंदी और इंग्लिश ही लिखा हुआ था. ठीक है, तो हो सकता है कि वो इन दोनों लैंग्वेज में ही आपका जो एलपीटी टेस्ट होगा वो लेंगे. ओके, ठीक है. तो जो मेन चीज था उस पर हम आते हैं डेट व्हाई यू शुड फिल द फॉर्म और व्हाई यू शुड नॉट. तो सबसे पहली चीज कि अगर आप एक सीरियस बैंकिंग, ऑनेस्टली मैं ये बोल रही हूँ ये बहुत सीरियस चीज है क्योंकि मैं आपको ये कोई हाइप नहीं बनाने वाली हूँ इस चीज का दैट अरे फिल करो. क्यों फील करना चाहिए, या आपके पास आप ग्रेजुएट हो, आपके पास एनफ नॉलेज है कि आप कंपेयर कर सको डेट आपको क्यों फॉर्म फिल करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए. मैं वहाँ यहाँ पे इस वीडियो में सारे बस रीजन आई एम गोइंग टू टेल यू दैट what is the reason that you should fill the form or why you should not. Okay, so the first reason have that if you have any financial pressure. ओके, लाइक कि अगर आपके ऊपर आप बहुत सालों से मान लो कि प्रिपेयर कर रहे हो बैंकिंग एग्जाम के लिए, अगर नहीं क्वालिफाई हो पाया है, अगर मैं ये बोल रही हूँ प्रीलिम्स भी अगर आपका क्वालिफाई, अगर आपने एक भी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया फिर आप सेकंड कैटेगरी में आते हैं. लेकिन अगर आपको प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है आपके लिए प्रीलिम्स भी क्वालिफाई करना हार्ड लग रहा है, देन यू शुड फिल दिस फॉर्म बिकॉज ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप एटलीस्ट अनएम्प्लॉयड नहीं रहोगे. आपको भले ही थोड़े टाइम के लिए से आपको एक टाइम मिल जाएगा फॉर प्रिपेयरिंग रेस्ट ऑफ द एग्जाम, रेस्ट ऑफ द बैंकिंग एग्जाम, लेकिन उसी के साथ साथ आप एक अपनी फैमिली के लिए अर्निंग मेंबर बन जाओगे. ठीक है, तो ये एक पहला रीजन है दैट आपको ये फॉर्म क्यों फिल करना चाहिए, दैट इफ यू आर फीलिंग एनी फाइनेंशियल प्रेशर then you should go for it, especially if you are a woman because बाकी एग्जाम्स की अगर मैं कंपेयर करूँ तो अभी बहुत अभी बैंक ऑफ बड़ौदा का भी आया था और भी बैंकिंग एग्जाम्स के आए थे, उनके फी जो थे ना फॉर्म फिलिंग वो थोड़े से हाई थे. बट मुझे ऐसा मतलब फील हो रहा है दैट ठीक है वुमेन के लिए यहाँ पे थोड़ा सा है कि वी कैन एडजस्ट इफ यू कैन मैनेज. तो आप एक बार फॉर्म फिल करके देख लो कि अगर आपको कोई भी प्रेशर आ रहा है फाइनेंशियल प्रेशर तो आप कर लो. और नॉट ओनली फॉर गर्ल्स ऑफकोर्स, फॉर मैन ऑल्सो, इफ यू थिंक दैट कि हाँ मुझे अभी एक प्रेशर होता है ना कि अगर हम उस प्रेशर एक फाइनेंशियल प्रेशर में रहते हैं तो हमसे प्रिपरेशन भी बाकी जो हमारे मेन एग्जाम्स है जो हमारा मेन गोल है उसको भी अचीव नहीं कर सकते, कर पा रहे मतलब कर पाते हैं. ठीक है, तो एक आपको एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी. ठीक है, दिस इज नॉट अ परमानेंट जॉब लेकिन फिर भी आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी. आपको थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स्ड हो जाओगे. आने वाले जो फॉर्म है बैंक के लिए आपके पास खुद का अर्निंग रहेगा, आप खुद के पैसे से आप उस फॉर्म का मतलब उस फिल फॉर्म को फिल कर पाओगे. ठीक है, तो कोई भी फाइनेंशियल प्रेशर है देन यू शुड गो फॉर इट. ठीक है,
अगर कोई फैमिली प्रेशर है, लाइक गर्ल्स के लिए एक मैरिज होता है कि अरे यार, हम बोलते हैं जनरली कि हम जॉब कर लेंगे फिर शादी के लिए जाएंगे, बट समटाइम ऐसा होता है ड्यू टू आवर एज और ड्यू टू सोसाइटी वो एक प्रेशर आने लगता है कि अरे यार, ना तो एग्जाम निकल रहा है, ऊपर से फैमिली और सोसाइटी बोलने लगती है कि एग्जाम निकल नहीं रहा है, एज भी जा रही है शादी की। तो उस प्रेशर को थोड़ा कम करने के लिए, क्योंकि जब हम खुद के पैर पे खड़ा हो जाते हैं तो फिर हम अपने लिए बेसिकली बोल पाते हैं, हम अपने लिए आवाज बोल्डली उठा पाते हैं। इसी वजह से अगर आप कोई भी फैमिली प्रेशर भी फील कर रहे हैं, एंड ऑल्सो फॉर द मेन, बिकॉज ऑफकोर्स फाइनेंशियल प्रेशर होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं फैमिली की कुछ कंडीशन में फैमिली प्रेशर नहीं करती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जब फाइनेंशियल प्रेशर होता है तो फैमिली प्रेशर भी आ जाता है। तो उस चीज़ से भी बचने के लिए आप यहाँ पे चांस ले सकते हो, क्योंकि जो कलर्कियल एग्जाम बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं, ये एग्जाम्स उससे आई टॉक अबाउट दिस एग्जाम, तो कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा पेपर इजी इसका रहता है। ठीक है, आज के टाइम पे हम बैंक एग्जाम के लिए 100% श्योर श्योर तो नहीं हो सकते हैं कि हाँ ये मतलब इसका इजी पैटर्न होगा, इसका हार्ड पैटर्न होगा, वो कुछ भी कर रहे हैं। बट ठीक है, फिर भी हम एक कंडीशन लेके चलते हैं कि बाकी का अगर हमारा प्रीलिम्स नहीं भी निकल रहा है, इसमें एक ही एग्जाम क्वालिफाई करना है, मीन्स एक ही जो रिटन एग्जाम है वो क्वालिफाई करना है, तो वो ठीक है कि हमारा यहाँ पे एक बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो अगर ये दो प्रेशर है आपके पास तो आप फॉर्म डेफिनेटली फिल करिए, क्योंकि एक तो फैमिली को बोलने के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या है कि हमारे ऊपर हमारे खुद के ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं है कि हमारे पास कोई एग्जाम नहीं है, हम पढ़ नहीं पा रहे सही से, हमें लग रहा है कि अरे यार एग्जाम मतलब होगा नहीं होगा, या नोटिफिकेशन आ जाने के बाद हम प्रिपरेशन शुरू करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे पास एक डेडलाइन होता है ना कि इस टाइम तक हमें अपना प्रिपरेशन कंप्लीट करना है, तो फिर एक जोश वो जुनून जो होता है ना वो एकदम सही ट्रैक पे होता है। लेकिन अगर हमें लगता है कि यार यार अभी तो यू नो अभी तो कमिंग मंथ्स में कोई भी एग्जाम्स नहीं है, तो फिर हम हमारे अंदर थोड़ा लेजीनेस आ जाता है, फिर हमें लगता है दैट ठीक है वी हैव एनफ टाइम टू प्रिपेयर, तो फिर इसकी वजह से हम लोग ना कहीं अपना प्रिपरेशन जो है वो कम कर देते हैं। ठीक है, तो उस चीज के लिए भी अगर आप के अंदर थोड़ा भी लेजीनेस लग रहा है, तो ये मत देखो दैट इज कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, ये 12 मंथ का है, कितने पैसे दे रहे हैं आपके पास। ठीक है, ज्वाइन करना ना करना डिपेंड ऑन यू। ठीक है, ये भी एक चीज है, ये तो डेफिनेटली ये आपके हाथ में है। लेकिन अगर आपको एक डेडलाइन मिल जाएगा दैट ठीक है, मेरे अंदर लेजीनेस आ रहा था, अब मेरे पास एक एग्जाम है, ऊपर से आपने फैमिली को भी बोल के रखा हुआ है कि ठीक है अभी अभी अपकमिंग मंथ में मेरे एग्जाम है, तो वो एक प्रेशर भी रहेगा, वो गुड प्रेशर, ये जो आप फैमिली को बोल के रखते हो ना, तो ऊपर से जो प्रेशर आता है कि नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो थोड़ा रिस्पेक्ट की बात हो जाती है, फिर बोलेंगे कि अरे यार ये भी एग्जाम नहीं निकला, तो एक्चुअली मैं इसको एक गुड प्रेशर में लेती हूँ कि ठीक है, कहीं ना कहीं वो जो गुड प्रेशर है ना वो होना भी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो प्रिपरेशन है वो राइट ट्रैक पे होता है, हम डाइवर्ट नहीं होते हैं अपने गोल से, तो ये चीज होना जरूरी है। इसलिए अगर आप मान लो कि अगर आपके पास कोई डेडलाइन नहीं है प्रिपरेशन का, तो ये एक्चुअली इट इज गोइंग टू एक्चुअली मीन्स ये एक अच्छा गुड लाइन होगा, डेडलाइन होगा, कि अगर आप अपने प्रिपरेशन को एक स्पीड दे पाओ। ठीक है, उसके बाद अगर आप बिगिनर हो, अगर आप बिगिनर हो और आपको लग रहा है कि अरे यार एग्जाम मतलब बैंकिंग एग्जाम कैसा होता है, मॉक टेस्ट तो हमने दे रखा है, बट फिर भी वो जो रियल एग्जाम जो फील होता है ना कि हम एग्जाम में जाते हैं, वो टाइम जाता रहता है, वो रिवर्स चलता रहता है, उस टाइम जो प्रेशर फील होता है, कैसे पैटर्न आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, मीन्स किस टाइप का सरफेस किस टाइप का वो इंटरफेस रहता है, तो अगर आप उस चीज को भी देखना चाहते हो, ठीक है, तो क्योंकि इसका ऑब्वियसली आप ये लेवल तो एग्जाम लेवल का कंपेयर नहीं कर सकते हो आप पीओ से या कलक से या एसओ से, बट ठीक है आपको एक इंटरफेस एक एक्सपीरियंस हो जाएगा दैट एग्जामिनेशन हॉल में जाया कैसे जाता है, वो प्रेशर कैसे हैंडल किया जाता है, तो वो थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। ऊपर से अभी थोड़ा एग्जाम हमें पता भी नहीं है ना, क्या नोटिफिकेशन था टेंटेटिव डेट का वो भी कैंसिल हो गया, तो अभी बहुत ज्यादा सर में ना खिचड़ी बन चुका है हर चीज का। जिनका एसबीआई जे है वो वेट कर रहे हैं कि अरे यार मतलब रिजल्ट कब आ रहा है, इनफैक्ट मेरा भी है, मैं भी वेट कर रही हूँ। तो ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, इस वजह से मैं ये चीज शेयर कर रही हूँ आपको। ठीक है, और मैं मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये है दैट एक भरोसा है दैट कि आप यहाँ रिलेट कर पाओगे इस सारी चीजों से। ठीक है, उसके बाद एक तो हो गया कि ठीक है आप बिगिनर हो, तो अगर आपको रियल टाइम वो एक्सपीरियंस चाहिए, रियल एग्जाम एक्सपीरियंस चाहिए, तो आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। दूसरा कि अगर आपके पास टाइम शॉर्टेज है, किस चीज़ का टाइम शॉर्टेज है, मीन्स फैमिली प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर, तो टाइम शॉर्टेज तो होगा ही, क्योंकि मेरे पास 2 साल 3 साल 4 साल अभी नहीं है, मैं मेरा ऑलरेडी एज 26
मान लो 27 हो चुका है या फिर 25 26 हो चुका है, तो वो उस चीज़ की वजह से भी, टाइम शॉर्टेज होने की वजह से भी एक प्रेशर आता है। तो उस प्रेशर को मतलब फिर हमारे अंदर बहुत नेगेटिव थॉट आते रहते हैं कि अरे यार मतलब टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। उस चीज़ को भी टैकल करने के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज अगर आपके स्टेट वाइज इसकी वैकेंसी आई है, आप इसके एक्चुअल नोटिफिकेशन में देख सकते हो। ठीक, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा था तो मैंने यहाँ पे मतलब मर्ज करना सही नहीं समझा, क्योंकि यार आप ग्रेजुएट हो, एटलीस्ट आपको नोटिफिकेशन, जो रियल बैंक का नोटिफिकेशन आता है ना, उसको पढ़ना तो डेफिनेटली आना चाहिए। तो इसलिए आप जाके देखो उसके नोटिफिकेशन में कि मैं इसमें पिन भी कर दूंगी नोटिफिकेशन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, वहां से भी जाके डाउनलोड करके वो चीज़ ठीक है देख सकते हो कि आपके स्टेट के अकॉर्डिंग कितना वैकेंसी आया है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अगर आपके पास टाइम शॉर्टेज है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है दैट यू शुड फिल द फॉर्म। ओके, ये तो रीजन हो गया दैट व्हाई यू शुड फिल द फॉर्म। बट मैंने यहाँ पे बोला था कि मैं ये भी बताऊंगी व्हाई यू शुड नॉट फिल दिस फॉर्म, बिकॉज द ट्रुथ इज इट इज गोइंग टू टेक योर टाइम। क्योंकि ये बहुत फटाफट इनका जो भी ज्वाइनिंग टाइम होता है ना, ये बहुत फटाफट करेंगे। बिकॉज अप्रेंटिस यू कैन कॉल इट इज लाइक इंटर्नशिप जॉब, लेकिन यहाँ पे आप इंटर्न की तरह जॉब नहीं करोगे, एक वेल नोन एम्प्लॉय की तरह जॉब करोगे। ठीक है, तो आपका टाइम तो लेगा ही। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये सोच रहे हो कि ठीक है, अगर आप टाइम मैनेजमेंट करने में अच्छे हो, आपको लगता है कि जॉब के साथ टाइम मैनेज हो जाएगा, तो फिर आप इस फॉर्म को फिल करो। क्योंकि अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है, आपका एक भी प्रीलिम्स एग्जाम निकला है गाइस, अगर आप बैठे हो मेंस के लिए, तो फिर इस प्लीज ये एक रिक्वेस्ट है, और आपको ये सारी प्रॉब्लम में से कुछ भी नहीं है, तो इस फॉर्म को मत फिल करो। अपना फोकस एकदम एग्जैक्ट गोल ओरिएंटेड रखो कि ठीक है, मुझे मतलब बस ये सारी प्रेशर नहीं है, तो अपने आप को एक लकी इंसान मानो, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों को ये सारे प्रेशर को झेलना पड़ता है। तो अपने आप, अगर आपके साथ ये सारे प्रेशर नहीं है, ये सारा रीजन नहीं है, तो अपने आप को एक लकी इंसान मानो। दूसरा कि अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है कि मैं इन जॉब के लिए नहीं बनी हूँ, मेरा जो गोल है ठीक है वो बहुत क्लियर है, तो फिर आप इस फॉर्म को फिल मत करो। क्योंकि ये बहुत, एक्चुअली में मैं ये नहीं बोलूंगी, आज के टाइम पे बैंकिंग जॉब्स जो है ना वो बहुत हेक्टिक हो गए। ठीक है, मतलब ठीक है जॉब है तो ऑब्वियस सी बात है, बैठ के तो रहोगे नहीं ना, आपको काम करना ही पड़ेगा। तो ये मैं बोल रही हूँ कि आप इस जॉब को कि अरे यार ये तो अप्रेंटिस का जॉब है, एज अ ट्रेनिंग मतलब जॉब है, तो हम यहाँ पे मतलब हमें यहाँ पे इनफ टाइम मिलेगा, तो नहीं, जब तक आप ऑफिस में रहोगे आपको टाइम नहीं मिलने वाला है, समझ रहे हो? बिकॉज आपने देखा है, यू हैव टू वर्क ऑन द इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, द इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो इतने आप एनफ हो, मैं किस चीज को बोल रही हूँ, किस चीज के बारे में बोल रही हूँ, तो समझ रहे हो कि वो प्रेशर रहेगा आपके ऊपर उस चीज को काम करने का। तो आप अपना प्रिपरेशन, हो सकता है अगर आप टाइम मैनेजमेंट करने में अच्छे नहीं हो तो फिर आप नहीं कर पाओगे। तो अगर ये सारे प्रेशर नहीं है तो फिर फॉर्म फिल मत करो। आपका एक भी प्रीलिम्स निकला है, आप मेंस में बैठे हो, अगर कुछ मार्क्स की वजह से अगर आपका नहीं निकल पाया है, अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैंने अभी जो एसबीआई क्लर्क 1 अप्रैल को जो उसका रिजल्ट आया था, मेरा मतलब ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो गया। बिकॉज मेरा, मैं क्या ही बोलूं, बिकॉज ऑफ जीए मेरा नहीं हो पाया सेक्शन कट ऑफ क्लियर, तो ठीक है नहीं हो पाया वहां पे, मैं नहीं मतलब उस टाइम थोड़ा डीमोटिवेशन फील होता है जब नहीं होता है सिलेक्शन किसी भी रीजन की वजह से। बट ठीक है, वो अपने आप को संभालना पड़ता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने मेंस दिया है, तो क्योंकि अब आप प्रीलिम्स से बाहर निकल चुके हैं, अब आप वो बिगिनर फेज में हो ही नहीं, अब आप मेंस में बैठ चुके हैं, कहीं ना कहीं आपने मेंस का वो एक्सपीरियंस, वो प्रेशर एक्सपीरियंस कर लिया है, तो आप अगले मेंस के लिए खुद को आप मेंस मटेरियल समझो। अब वो प्रीलिम्स मटेरियल समझो ही मत कि यार यार एक प्रीलिम्स निकल जाएगा तब देखेंगे, तब तक कोई टेम्पररी जॉब सोच लेते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज अ टेम्पररी जॉब। ओके, लेकिन आप समझो अपने आप को एक मतलब एक रियल एस्पिरेंट जो होता है ना, खुद पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो। आने वाले एग्जाम्स अभी आएंगे, मतलब अगर देखो अभी डिले हो रहा है ना, तो हमें ऐसा लग रहा है कि वी हैव एनफ टाइम टू प्रिपेयर, बिकॉज जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा ना गाइस, तुम सोचो ना, जो भी मतलब पुराने एस्पिरेंट हो गए उनको पता है कि कैसे जून से स्टार्ट और मई लास्ट से स्टार्ट हो जाता था नोटिफिकेशन आना। इनफैक्ट आप देख रहे हो कि यही नोटिफिकेशन जून में आया है, तो अभी से तो मान के चलो कि कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीक और थर्ड वीक ऑफ जून नोटिफिकेशन, और मीन्स जून लास्ट तक नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद यू आर नॉट गोइंग टू हैव टाइम फॉर प्रिपरेशन, आपको उसके बाद सिर्फ रिवीजन रिवीजन रिवीजन, मॉक 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 यही करना होगा। आप ये सोचोगे कि नोटिफिकेशन के बाद प्रिपरेशन शुरू करिए, तो यू यू आर नॉट गोइंग टू हैव दैट मच ऑफ टाइम। ओके,
सो इफ यू आर गुड इन प्रिपरेशन, आपका प्रिपरेशन हो चुका है, आपका प्रीलिम्स निकल चुका है, आपको कोई फाइनेंशियल कोई फैमिली प्रेशर नहीं है, तो मजे के लिए या टाइम वेस्ट के लिए इस जॉब में मत जाओ प्लीज। उनके लिए ही रहने दो जिनको इस जॉब का रियल जरूरत है, ठीक है। प्लीज इसमें मत जाओ, अपना प्रिपरेशन फुल गोल ओरिएंटेड ही रखो, ठीक है। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत भी क्लियर हो गया होगा दैट कि आपको फॉर्म फिल करना है या फॉर्म फिल नहीं करना है। मैंने इतनी बार बोल दिया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है दैट इट इज अ टेम्पररी जॉब। 12 मंथ का होगा, 15,000 यू आर गोइंग टू हैव स्टिपेंड और सैलरी वट एवर यू वॉन्ट टू से दिस, ठीक है। आपको मिलेगा 15,000 आपके पॉकेट मनी के लिए। आई थिंक इतना तो मतलब ठीक है, ठीक ही होगा। एटलीस्ट आप खुद का फॉर्म अगर आप जॉब लेते हो तो फिल कर पाओगे, तो ठीक है। और एक बात और कि अगर आप डर रहे होगे उनके लिए, मैंने जैसे बोल दिया कि यू आर नॉट गोइंग टू हैव दैट मच ऑफ टाइम फॉर प्रिपरेशन, तो वो डर होगा ना अंदर में कि अरे यार इतना टाइम तो नहीं मिलने वाला है प्रिपरेशन के लिए, तो ठीक है। अगर आपके पास ये सारा प्रेशर है बच्चे, तो थोड़ा तो आपको झेलना पड़ेगा एस्पिरेंट, ठीक है। थोड़ा आपको अपने अंदर वो स्ट्रगल थोड़ा तो करना पड़ेगा लाइफ में, तभी जाके कुछ अच्छा कर पाओगे और बहुत अच्छे से निकलोगे। इस स्ट्रगल को ना बैड साइड में मत देखो, देखो कि ये स्ट्रगल खत्म होगा ना तो आप बहुत अच्छे से निकलोगे। एंड ऑफकोर्स इट इज अ 12 मंथ जॉब। आप आफ्टर 12 मंथ, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है ना, तो उसके बाद आप एग्जाम दोगे, आप सर्टिफिकेट गेन करोगे, उसके बाद आप फ्री हो जाओगे, ठीक है। तो आप बाकी जो एग्जाम्स है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि एकदम से ही अभी जाके अगर आपका एसबीआई, अगर मैं अभी जो 2024 कलर का एग्जाम हुआ था वो छोड़ दूं, तो ऐसा नहीं है कि आपका 6 मंथ में ज्वाइनिंग होने वाला है। कोई भी एग्जाम अभी होगा तो वो नेक्स्ट ईयर ही मार्च में, अप्रैल में, यही ज्वाइनिंग डेट तुम्हारी, ठीक है। जो भी 2025 के एग्जाम्स होंगे, तो ठीक है, आपके पास वो ऐसा भी नहीं होगा कि आपको बीच में छोड़ना पड़ेगा। आपका 12 मंथ पास हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अगस्त भी रखो तो कहीं ना कहीं ठीक है, आपको थोड़ा बहुत तो वो चीज मैनेज करके, अगर आपके पास नहीं है ये सारे प्रेशर है, तो थोड़ा बहुत आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो था रीजन दैट कि आप फॉर्म फिल करो या ना करो। अगर आप मुझसे पर्सनल एडवाइस पूछोगे कि ठीक है प्लीज आप बताओ दैट आपके अकॉर्डिंग हमें, ये तो ठीक है, ये सारे तो रीजन होंगे, पर आपके अकॉर्डिंग क्या फॉर्म फिल करना चाहिए, तो मैं बस एक ही चीज बोलूंगी दैट नो, प्लीज अगर ये सारे रीजन नहीं है और एकदम से जरूरी नहीं है तो मत करो फॉर्म फिल, बिकॉज ये मेरा एडवाइस है, ठीक है। बट पता नहीं क्यों, बट मैं नहीं कर रही हूँ फॉर्म फिल। मैं आपको भी नहीं बोलूंगी कि प्लीज ये फॉर्म फिल आप करो, क्योंकि ये टाइम दे देगा। जो रियल प्रिपरेशन टाइम है, जो कहीं ना कहीं एक आपका जॉब का भी प्रेशर रहेगा, फिर उसके साथ बाकी एग्जाम के प्रिपरेशन भी साथ में रहेंगे, वो प्रेशर बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। तो इसलिए मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि ये चीज फॉर्म फिल करने के लिए। लेकिन अगर बात करो तो अभी तो प्यून का आया था, उसमें भी आपने देखा कि कितने लैक्स में गए हैं मतलब फॉर्म। तो आप ये सोच सकते हो कितना अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अगर आपको लगता है दैट मेरे पास ये सारा प्रेशर है, तो प्लीज आप इस फॉर्म को फिल करो, ठीक है। ठीक है, अगर ठीक है वो तो अब आपको यहाँ लग रहा है कि जो लोग इस फॉर्म को, अगर इस जॉब को नहीं लेते हैं, उनके पास बहुत सारे बेनिफिट है प्रिपरेशन के लिए। लेकिन गाइस यू आर आल्सो गोइंग टू हैव सम बेनिफिट। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप ये जॉब करो और आपके हाथ बस टाइम शॉर्टेज कहीं आए कि अरे यार प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिला, प्रेशर आए, स्ट्रगल आए, ऐसा तो नहीं है ना कुछ आपको इस जॉब के बाद तो बेनिफिट मिलेगा। पहली चीज कि जब आपका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, ट्रेनिंग टाइम पीरियड, आपको एग्जाम देना पड़ेगा, वो एग्जाम आप क्वालिफाई कर जाओगे तो फिर आपको इस ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट मिलेगी। जब आपके पास ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आएगा, तो आप आपके जो अपकमिंग बैंक एग्जाम्स हैं उसके इंटरव्यू में, इनफैक्ट क्योंकि आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस होगा गाइस। जो लोग मतलब जैसे मैं हूँ अभी, मैं सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ के ही जाके इंटरव्यू दूंगी, आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस रहेगा। एक तो वो एडवांटेज हो जाएगा। दूसरा, आपके पास सर्टिफिकेट जैसे ही वैल्यू हो जाते हैं ना, तो आप फॉर्म भी फिल करते हो तो आप देखते हो कि आपसे पूछता है कि हैव यू अप्लाइड फॉर द अप्रेंटिस जॉब, क्या आपने अप्रेंटिस जॉब कर रखा है पहले से, क्या आपके पास उस बैंक के अप्रेंटिस जॉब का सर्टिफिकेशन है। वाई दे आस्क, ये ऐसे ही तो नहीं है, यूजलेस के लिए नहीं आस्क करते हैं, लेकिन आपको वो बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको इस जॉब के लिए बेनिफिट है, तो ये सारे बेनिफिट है, ठीक है। रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा, तो उनको भी चाहिए कि अगर कोई बंदा है उसको रियल एक्सपीरियंस है, तो उनको भी ट्रेनिंग देने में थोड़ा कम लगेगा। तो ऑफकोर्स ये बेनिफिट तो आपको हो ही रहा है ना, कि बाकी जिनको एक्सपीरियंस नहीं होगा इंटरव्यू में, आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस होगा, तो आप खुद ही सोचो ना कि आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो डीमोटिवेट नहीं होना है कि आपको इन प्रेशर की वजह से अगर आपको फॉर्म फिल करना पड़ रहा है तो आप डीमोटिवेट हो जाओ कि अरे यार हमारा तो टाइम भी चला गया, कोई फायदा भी नहीं हुआ, बस 12 मंथ हमने जॉब करा, हो गया। नहीं गाइस, ऐसा नहीं है। आप
टाइम दे रहे हो तो ऊपर वाला देख रहा है, वो आपको डेफिनेटली बेनिफिट देगा, और ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। So thank you so much for watching this video till the end. I hope कि आपके doubts clear हो गए होंगे, and still if you have any doubt you can ask in comment section, ठीक है। मैं comment section में हमेशा अवेलेबल हूँ। एक रिक्वेस्ट है that आप खुद से भी वो जो नोटिफिकेशन आया है उसको go through करो, comment section में आपको नोटिफिकेशन का PDF मिल जाएगा। So guys, thank you so much for watching this video.